Dear students and learners, a warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. So today's video lecture is about 10 questions from English Question Bank provided by SCRT on 15th March 2021. Before starting this video lecture, I must tell you all, I am going to explain you questions and answers in Hindi, and I'm going to tell you answers of all these 10 questions which is not there in your English class 12th textbook. I must tell you all, if you are following any other YouTube channel, please don't watch it out. I am providing you a link of this PDF file in the description box of this video lecture. You can go and check it out. You can easily download the PDF file of these answers. अगर आप किसी गाइड को या डाइजेस्ट को रिफ़र कर रहे हैं या फिर आप कोई दूसरे YouTube चैनल से इन क्वेश्चंस को लर्न कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ना देखें, क्योंकि यू विल गेट कंफ्यूज्ड. उसका मटेरियल प्लस इसका मटेरियल प्लस गाइड का मटेरियल मिक्स होके आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा. So most of the students find this section of novel as a literary genre the most difficult among all. So here in this video lecture, I will tell you all the answers in a very simple language. I have used very simple language so that you will easily remember. I will explain it to you so that you can easily remember the answer and the story. Let's see question number 5B. So this lesson 4.2 to serve with love will come on question number 5B in your board examination. And question number 5B, C and D are based on descriptive type question. In question number 5A, you will have questions from the lesson history of novel, and those two questions are objective type questions. But in question number 5B, C, D, you will have question of descriptive type. Now let's see the first question. Half yearly report of the Students' Council highlights the conduct of Braithwaite's class. Justify. देखिए, अगर if you have read this particular lesson, you must know this whole lesson is about half yearly report and the student teacher relationship. तो हाफ ईयरली रिपोर्ट जो थी स्टूडेंट काउंसिल की, वो क्या हाईलाइट करती हैं कि ब्रेथवेट की क्लास ने कैसे कंडक्ट किया. सो दिस आंसर इज सफिशिएंट फॉर 2 मार्क्स. अगर आप डाइजेस्ट में देखते हो तो यू विल हैव अ लॉन्ग आंसर. अगर आप कोई और यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो तो वो आपको बहुत बड़ा आंसर बताएंगे. लेकिन आप देखिए कि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है, आपको आंसर सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है. मान लो अगर आप इस आंसर को 2-3 पेज का भी लिखते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसमें. In that case, you will also get 2 marks. 2 मार्क ही आपको मिलेंगे. The answer is in the half yearly report of the Students' Council. The students report to the faculty and other students on what they have been studying so far. Half yearly report में students ने ये बताया था कि उन्होंने अब तक क्या पढ़ा है. The representatives of the narrators' classes spoke knowledgeably about their coursework and the amount of emphasis on how much they had learned about different people, cultures, customs and the importance of international and interracial cooperation. और जो हमारे नरेटर है E.R. ब्रेथवेट, तो उनके स्टूडेंट्स ने बताया था कि उन्होंने कैसे डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल और इंटररेशियल कोऑपरेशन के बारे में उन्हें समझा. मिस जोसेफ एंड डेनम, ये जो 2 स्टूडेंट थे नरेटर की क्लास के, उन्होंने ये पूरे हाफ ईयरली रिपोर्ट को रिसाइट किया यानी कंडक्ट किया. द नरेटर वॉज इमेंसली सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. जो नरेटर है E.R. ब्रेथवेट, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे अपने स्टूडेंट्स से और उनकी प्रोग्रेस से. हैंस हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हाईलाइट्स द कंडक्ट ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास.
तो अब ये जो क्वेश्चन था उसी को हमने इस आंसर में इंक्लूड किया है सेम, सिर्फ हमने एक वर्ड ऐड किया है हैंस। हैंस के बाद में कॉमा डाला और पूरा क्वेश्चन जैसे कि वैसे लिख दिया। इन द क्वेश्चनिंग सेशन डेनम वॉज एक्सप्रेसिंग फ्यू स्टूडेंट्स फीलिंग्स इलस्ट्रेट। जो हम ब्रेथवेट है, जो हमारे नरेटर हैं और राइटर है इस पर्टिकुलर नॉवेल के, उनके क्लास का स्टूडेंट है डेनम। तो डेनम ने दूसरे स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि हाफ ईयरली रिपोर्ट में हुआ था वहाँ दर्शाया। तो ये बताना है हमें इस आंसर में। तो डेनम डिलीवर्ड अ शॉकिंग रिपोर्ट एज ही क्रिटिसाइज्ड द स्ट्रक्चर एंड जनरल पैटर्न ऑफ द पीटी एंड गेम्स क्लासेस। पीटी एंड गेम्स क्लासेस के बारे में डेनम ने बताया, क्वेश्चन किया। डेनम आर्ग्यूड दैट द क्लास ऑफर्ड नो फिजिकल बेनिफिट्स। डेनम के अकॉर्डिंग पीटी क्लास जो है वो कोई भी फिजिकल बेनिफिट नहीं दे सकती। बीइंग अ ट्रेंड बॉक्सर, डेनम जो था एक ट्रेंड बॉक्सर था। डेनम वॉज द ओपिनियन दैट, उसका ऐसा ओपिनियन था कि एक्सरसाइजेस कुड ओनली बेनिफिट द स्टूडेंट्स इफ दे वर परफॉर्म डेली। एक्सरसाइज स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद तभी हो सकती है जब वो उन्हें डेली परफॉर्म करे एंड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, और देर तक के करे। देयर बाय इम्प्लाइंग दैट एज द पीटी क्लास वॉज ओनली फॉर 20 मिनट्स, और पीटी क्लास सिर्फ 20 मिनट की होती थी ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दिन। इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू डेनम, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। डेनम प्रोटेस्टेड द नीड फॉर ऑल स्टूडेंट टू टेक द पीटी क्लास। मिस फिलिप्स इफेक्टिवली हैंडल द क्वेश्चनिंग सेशन, गिव सपोर्टिंग डिटेल। अब डेनम ने जब आर्ग्यू किया तब मिस फिलिप्स जो कि एक टीचर थी वो उसका आंसर देने के लिए वहाँ पे आई। तो व्हेन डेनम आर्ग्यूड अबाउट पीटी क्लासेस, मिस फिलिप्स स्टेप्ड इन एंड रिस्पॉन्डेड बाय रिमाइंडिंग द स्टूडेंट्स दैट बिकॉज द स्कूल हैड लिमिटेड रिसोर्सेज द गोल वॉज टू हैव अ टाइम टेबल दैट has maximum benefit for maximum number of students. Miss Phillips argued that while Denham, another physically fit students like him, might not see the benefit of the PT class, it's PT not PT, PT class, because of their participation in other sports, but the school has many more students that could benefit from it. In addition, she even called upon senior students like Denham to help out in this respect. Further, Miss Phillips responded by saying that the school prepares the students for the real world. It was therefore important for them to get used to doing things they have been told to do, even if they don't like it. तो ऐसे करके उन्होंने डेनम के आर्ग्यूमेंट को रोका और एक्सप्लेन किया कि स्कूल्स के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अगर डेनम एक ट्रेन बॉक्सर है और फिजिकली फिट है तो डेनम को चाहिए कि वो दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करें। फोर्थ क्वेश्चन इज write a short note on the event which took place on 15th November in Greenslade School. Greenslade स्कूल का नाम है। 15th नवंबर को हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। हमने अपने आंसर की स्टार्टिंग में यही लिखा कि द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, एन इवेंट एंटायरली अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स themselves, was held on November 15th. Miss Josephine Denham were the in charge of the day's program. The मीटिंग बिगेन विद अ स्पीच बाय फ्लोरियन। फ्लोरियन जो है वो हेडमास्टर हैं, उन्होंने मीटिंग को स्टार्ट किया। हु आउटलाइन द एम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द स्कूल, जिन्होंने एम्स क्या मकसद है और पॉलिसी क्या है स्कूल की वो बताया। मिस जोसेफ जो कि डेनम के साथ में कंपेयरिंग कर रही थी और ब्रेथवेट की स्टूडेंट थी, उन्होंने काउंसिल के पर्पस और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। ईच सब्जेक्ट हैड इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव, हर सब्जेक्ट का एक अलग अपना रिप्रेजेंटेटिव था, यानी स्टूडेंट ही रिप्रेजेंटेटिव थे। द लोवेस्ट क्लास वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। जो लोवेस्ट क्लास थी यानी जो मोस्ट जूनियर थे वहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रेजेंटेशन। द मीटिंग एंडेड विद अ फाइनल एड्रेस बाय द हेडमास्टर, और मीटिंग एंड हुई हेडमास्टर के एड्रेस से, यानी एड्रेस यानी संबोधित करना। द एक्सट्रिक्ट प्रेजेंट्स द नरेटर एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ द इवेंट्स। देखिए जब हाफ ईयरली रिपोर्ट थी तब ब्रेथवेट ने कुछ भी नहीं कहा था, ही वॉज अ साइलेंट ऑब्जर्वर, और इस स्टेटमेंट को आपको इलेबोरेट करना है। द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स council was a report to be presented by the students, were an overview of what they had learnt with Braithwaite.
कि स्टूडेंट ने ब्रेथवेट के साथ क्या सीखा एंड वर देयर फॉर अ मेजर ऑफ हिज हार्ड वर्क. In addition, they provided Braithwaite with the perfect chance to sit back and observe them as an audience member. Braithwaite जो है वो as an audience member बैठा था वहाँ पे. The day finally arrived, यानी हाफ ईयरली रिपोर्ट का डे फाइनली आ गया है and Braithwaite took his seat in the audience. The reports would show if the students had actually learned something from their courses, as the emphasis was on what they have understood rather than what they were expected to learn. Braithwaite realized that this was a test of his teaching skills and whether he failed or passed depended upon the report presented by his student. When it was finally the time for his student to present the class report, he was anxious about their performance and sat up straight in his seat. Thus, Braithwaite was a silent. और यह इसलिए हम फिर से अगेन क्वेश्चन लिख देंगे. Thus, THUS, thus the extract presents the narrator as a silent observer of the event. क्योंकि ब्रेथवेट ने कुछ नहीं कहा, ये उसकी टीचिंग स्किल को टेस्ट करने का मौका था. ब्रेथवेट एज एन ऑडियंस बन के वहाँ पे और एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर बन के वहाँ पे बैठा था. Sixth question is analyzing the change in the students' behavior in the presentation is the central theme. इस नॉवल की सेंट्रल थीम यानी मेन आइडिया है एनालाइजिंग द चेंज, कि एनालाइज करना स्टूडेंट के बिहेवियर को. जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब ब्रेथवेट ने स्कूल को ज्वाइन किया था स्टूडेंट काफ़ी रूड और इल मैनर्ड थे, लेकिन बाद में ब्रेथवेट की टीचिंग टेक्निक्स के से वो बहुत अच्छे और मैनर्ड वाले हो गए थे. द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ देयर स्टूडेंट काउंसिल वाज अ रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स. अगेन हमने स्टार्टिंग में 2 बार ये वाली लाइन लिखी है और अगेन मैंने यहाँ पे रिपीट की है ताकि आपको ज़्यादा कुछ नया लर्न ना करना पड़े, मगअप ना करना पड़े. वर एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट दे हैड लर्नड विद ब्रेथवेट. एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर Braithwaite's student had rude, ill-mannered, showed no interest in their courses, but with the innovative teaching methods and techniques, Braithwaite had laid the foundations of a strong student-teacher relationship based on mutual respect. He was patient and cared for the student, and this led a transformation in their attitudes. और अपनी टीचिंग टेक्निक से ब्रेथवेट ने अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला लिए थे. These thus अगेन THUS लिखना है आपको. thus एनालाइजिंग द चेंज इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर. अगेन आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको रिपीट करना है. जब भी आपको कोई स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट को आपको इलेबरेट या इलस्ट्रेट करना है तो एट द एंड ऑफ योर आंसर आपको THUS thus या फिर हैंस HENCE हैंस कॉमा लगा के वो पूरे क्वेश्चन को लिख देना है. Denham and Miss Joseph played a key role in the presentation of the half-yearly report of Students' Council. Denham और Miss Joseph जो थे वो ब्रेथवेट की क्लास के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने की रोल निभाया था प्रेजेंटेशन जो थी हाफ ईयरली रिपोर्ट की. इसको आपको इलस्ट्रेट करना है, इलेबरेट करना है. तो Miss Joseph and Denham are the two most senior students and are in charge of the Students' Council report program. ये सीनियर मोस्ट स्टूडेंट थे और स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट के इंचार्ज भी थे. मिस जोसेफ ने काउंसिल के पर्पस और इसकी एक्टिविटीज़ को बताया और डेनम ने एक शॉकिंग रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें बताया कि उसे PT एंड गेम्स क्लासेस जो है वेस्ट ऑफ टाइम है. कुछ नहीं किया है हमने जो स्टार्टिंग में जो आंसर्स लिखे थे उसी के आंसर्स में से दो लाइन करके इसके आंसर को बनाया है. और आप इसमें भी देख सकते हो सेकेंड लास्ट लाइन में कि 10 डेनम एंड मिस जोसेफ, मैंने अगेन क्वेश्चन को ही आंसर में लिखा है 10 लगा के. 10 डेनम एंड मिस जोसेफ प्लेड अ की रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल. 8th question is the senior students presented their class report more confidently than the junior students. Give reasons. Senior student ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया एज कम्पेयर टू जूनियर स्टूडेंट हाफ ईयरली रिपोर्ट में. रीज़न आपको बताने हैं. देखिए अगेन हमने जो इसके पहले क्वेश्चंस लिखे हैं उसी में से हमने ये आंसर को बनाया है. इन द हाफ ईयरली रिपोर्ट ईच क्लास टुक टर्न्स रिपोर्टिंग थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन व्हाट दे हैड बीन स्टडिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. हर क्लास का अलग रिप्रेजेंटेटिव था और उन्हें बताना था कि उन्होंने इस साल कितना पढ़ा है. ईच सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव. हर सब्जेक्ट का अलग रिप्रेजेंटेटिव था. द लोवेस्ट क्लास इज़ द फर्स्ट टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट बीइंग द यंगेस्ट. लोवेस्ट क्लास यानी जो जूनियर थे उन्होंने स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन देना. द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर फ्राइटेंड.
डरे हुए थे, बट मैनेज टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट्स ऑनरेबली, लेकिन अच्छे से अपनी रिपोर्ट दे दी थी. एज ईच सक्सीडिंग क्लास प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट, इट बिकेम क्लियर दैट एज द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस्ड थ्रू द रैंक्स देयर वॉज अ नोटिसेबल. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि ये क्लियर हो गया जब हर क्लास में हर स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया कि द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस्ड थ्रू द रैंक्स, जैसे जैसे रैंक्स बढ़ते जाते हैं, देयर वॉज अ नोटिसेबल इंक्रीज इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वैसे वैसे उनकी एबिलिटी जो है खुद को एक्सप्रेस करने की वो बढ़ती जाती है. मिस्टर ब्रेथवेट्स क्लास बीइंग द ओल्डेस्ट वॉज द लास्ट टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट. सीनियर मोस्ट जो थे वो ब्रेथवेट की क्लास के स्टूडेंट थे और लास्ट में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी. हैंस करके हमने क्वेश्चन को पूरा लिख दिया. द सीनियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेड देयर क्लास रिपोर्ट मोर कॉन्फिडेंटली देन द जूनियर स्टूडेंट्स. Ninth question is, Feynman was innovative and dramatic in his presentation. Discuss in brief. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए फर्नमैन ने क्या किया था. फर्नमैन मेड अ सिग्नल टू समवन ऑफ स्टेज, जो ऑफ स्टेज पे नहीं था उन्हें एक सिग्नल दिया. दो स्टूडेंट थे, एक का नाम था वेल्श, एक का नाम था एलिसन. वो दोनों आए बियरिंग अ स्केलेटन बिटवीन देम, स्केलेटन लेके विथ अ सॉर्ट ऑफ गैलोस. व्हेन दिस अरेंजमेंट हैड बीन सेट अप, देयर वाज द स्केलेटन हैंगिंग फ्रॉम अ हुक इज screwed into the top of its skull, gently revolving at the end of a cord. This brought some, और ये वाला जो इंसिडेंट था, this brought some comic relief to the proceedings and the students laughed aloud. Thus, Feynman was innovative and dramatic in his presentation. 10th question is completely different. ये कोई आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है और ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि द स्टेज हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टेज का बहुत ज़्यादा गहरा असर जो है इम्पैक्ट वो पड़ा स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन पे. आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. तो इट्स कम्प्लीटली काइंड ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन. द स्टेज हेल्प्स देयर स्टूडेंट्स टू sharpen their speaking skills. It helps them to speak confidently in front of the audience. Students get an opportunity to express themselves and develop critical thinking. They get to overcome their fear and get stage daring by presenting themselves. So it's completely a personal response type question. So thank you so much for watching this video. If you have any question related to this particular video lecture or related to your study, you can ask me in the comment box of this video. If you haven't subscribed that channel, please subscribe it now and please press the bell icon for new notification. I am your digital teacher, Professor Hina Kausar. Thank you so much for watching in this video. Thank you so much.